بگا بھی کوئی زر خرید غلام ہی تھا۔ ممکن تھا بعد میں جو غلام ان کے لیے زیادہ قربانیاں دیتا وہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہوں۔ بگا اور اس جیسے چند اور شاید انہی لوگوں میں سے شامل تھے۔ کرانی القصائی یعنی شکرا ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی حالت ہنوز نگفتبا تھی۔ وہ فرش پر پڑا تھا۔ ہاں وہی شکرا، اب کیسے ہو تم؟ میں نے زہریلے لہجے میں اس بار اسے اس کے نام سے پکارا تو غصے اور تندی کی لہر اس کے چہرے پر لمحے بھر کو خیرت میں بدلی۔ پھر وہی اول ذکر تاثرات سے اس کا بدہیت چہرہ اور مسخ نظر آنے لگا۔ اس نے قیدی کو دیکھ لیا تھا۔ تمہارے ساتھیوں کا حملہ ناکام ہو چکا ہے، جس پر تم شیطانی کہہ کے لگا رہے تھے۔ اب کیا کہتے ہو؟ زبان کھولو گے یا پھر گنتی 1 سے شروع کی جائے؟ میں نے اس کی عبرتناک حالت اور کیفیات سے حز اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خونی نظروں سے مجھے گھورنے لگا، پھر اسی لہجے میں غرا کر بولا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تم نے کن سے ٹکر لی ہے۔ یہ لوگ تم سب کو جلا کر بھسم۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور پرویز کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے شاید تھوڑی مہلت مل گئی تھی، اسی لیے یہ دوبارہ اینڈنے لگا ہے۔ ذرا اس کی طبیعت درست کرو۔ ابھی لو جی، میں تو خود بے چین ہوں۔ پرویز نے مستعدی اور چمکتی آنکھوں سے شکرا کو گھور کر دیکھا اور گھوڑا سیڑھی درست کرنے لگا۔ شکرا پرویز کو غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاید پہلی بار اس کا پالا اپنے جیسے کسائی سے پڑا تھا۔ پرویز بہت مضبوط جسم اور اسی طرح کا ڈیل ٹول رکھنے والا آدمی تھا۔ فائٹنگ کی مہارت اپنی جگہ، لیکن مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ آ سکا تھا کہ استاد جوجی نے اسے تشدد کی ٹریننگ کیوں دے رکھی تھی، یا پھر پرویز کی فطرت ہی ایسی تھی۔ جلاد صفت انسانوں کے بارے میں میرا اب تک تو یہی تجربہ رہا تھا کہ وہ فطرتاً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پرویز کا یہ روپ دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ کبھی اس بارے میں پوچھوں گا ضرور۔ تاہم سچی بات یہی تھی کہ اب تک خود مجھے بھی استاد جوجی کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اسے بس ایک عام سا ماسٹر ہی سمجھا کرتا تھا، جس نے اپنا ذاتی فائٹنگ کلب بنا رکھا تھا اور جہاں وہ نوجوان لڑکوں کو جوڈو کراٹے اور دیگر لڑائی بڑھائی کی تربیت دیا کرتا تھا۔ پرویز نے شکرا کو دوبارہ تختہ مشق بنانے کی تیاری مکمل کر لی اور اس کی جانب بڑھا تو وہ چلا کر بولا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور ہو جاؤ۔ مگر پرویز تو میرا حکم سننے کے بعد جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے ٹانگ سے پکڑ لیا۔ ٹھہر جاؤ، شاید اسے عقل آ رہی ہے۔ میں نے اسے روک دیا۔ پرویز سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بولو، جگنو کہاں ہے؟ میں نے شکرا کو گھور کر پوچھا۔ مگر یاد رکھنا، اب میں تمہاری کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے اپنے مشغلے سے روکوں گا، سمجھے تم؟ میں نے گھرا کر آخر میں اسے تہدید کی۔ پرویز بھی اسے بھوکی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ یہ شاید اس کی تربیت کا حصہ تھا۔ جب تم ایسے خطرناک لوگوں سے لڑائی مول لوگے تو اپنے پیاروں کو بھی تمہیں کھونا ہی پڑے گا، وہ سنگ دلی سے بولا اور میرا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ، جگنو کہاں ہے؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہلکے بل چلا کر بولا۔ اس کا بھی وہی حشر کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے دونوں ساتھیوں ٹاڈا اور نزاکت کا کیا گیا تھا۔ بالآخر اس نے ایک دل دہلا دینے والا انکشاف کیا اور مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ہو۔ دماغ جیسے کالی آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس سنگ دل کا منہ کھول کر اس کے حلق تک لمبے پھل والا چھرا اتار دوں۔ کیا تمہارے ہاتھوں اس کا قتل ہوا؟ بمشکل میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہی حکم ملا تھا۔ اے شاباشے! اچانک ہی استاد جوجی کے منہ سے برآمد ہوا اور مجھے جگنو کے متعلق ایسی غمناک خبر پر اس کا اے شاباشے کہنا بہت ناگوار گزرا۔ مگر دوسرے ہی لمحے جوجی آگے بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جوجی کی اس بات نے جیسے مجھے یکدم مسرت سے دوچار کر دیا۔ بس اوقات اچانک کسی غمزدہ خبر کے فوراً بعد اس کی نفی خواب بغیر کسی تصدیق ہی کے ہو دکھ کے اندھیاروں میں مسرت کی جوت ضرور جگاتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے جوجی کی طرف دیکھا تو اسے میں نے بڑے غور اور گہری نظروں سے شکرا کا چہرہ تک ٹیبل کے جیسے پڑتے ہوئے پایا۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جوجی اسی استحکام سے بولا جیسا پہلے اس نے کہا تھا۔ اگر جگنو کا بھی یہی حشر ہوا ہوتا تو یقیناً اس کی لاش بھی راڑا اور نزاکت کے ساتھ پڑی ہوتی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، پر یار اسے بھلا اتنا بڑا اور خطرناک جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ خطرناک جھوٹ؟ استاد جوجی اسرار بھرے لہجے میں مسکرا کر بولا۔ اس کی تیکھی اور کٹیلی نظریں ہنوز شکرا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں اور میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان کی سیدھ میں شکرے کے بدہیت چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے تو نہیں، البتہ اس مردود جلاد کی وحشت بری آنکھوں سے مجھے الجھن اور پریشانی کے آثار مترشح ہوتے ضرور محسوس ہوئے تھے۔ کوئی اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ایک دم فکر مند سا نظر آنے لگا تھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ابھی تک تمہارا مطلب نہیں سمجھا ہوں، میں نے جوجی سے الجھن امیز انداز میں کہا۔ یہ جس قدر ظالم اور بے رحم ہے، اس سے زیادہ مکار اور چالاک بھی ہے۔
इसने दानिस्ता ऐसा बोलकर तुम्हें तैश दिलाने और फौरन इंतकाम पर उकसाना चाहा है ताकि तुम उसे इस आग तले फौरन हला कर डालो। वाह उस्ताद जी, मान गए। अचानक ही परवेज भी चहक कर बोला, मेरा अपना ख्याल भी यही था, यह मुझसे बचना चाहता है और अब मौत में पनाह ढूंढ रहा है। मुझे भी तसल्ली हुई और मैंने शिकरा को घूरा। तुम फिर बकवास करने लगे। देखो जुगनू के बारे में सच बता दो, वरना हमसे इसी तरह मौत की भीख मांगते रहोगे, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर देंगे। मेरी जिंदगी की क्या जमानत होगी। बिलाखिर शिकरे ने कहा, और मेरे अंदर अधूरी और उम्मीद भरी मुसर्रतों को जैसे लंबी जिंदगी मिल गई। इसका यूं कहना जाहिर करता था कि जुगनू जिंदा था और उसने अभी थोड़ी देर पहले जुगनू से मुतल्लिक जो बकवास की थी वो झूठी थी। हैरत की बात थी कि जोजी ने इसका झूठ पकड़ लिया था, जबकि मेरा भी तजर्बा कम नहीं था, मगर मैं नहीं भांप सका। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जोजी नहीं बल्कि वाकई उस्ताद जोजी है, अगरचे इसका अंदाज हमेशा मन मोची ही रहा था। तुम्हारी जिंदगी की फकत इतनी जमानत ही होगी कि तुम्हें फौरी और बिला तशद्दुद मौत के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने उसकी तरफ घूर कर जहर नाक और सफाक लहजे में कहा। मैंने देखा मेरी बात पर उसका बदहैत सा चेहरा एकदम खिल उठा। अपनी मौत का उसे यकीन तो पहले ही हो चुका था, मगर मौत से बदतर जिंदगी उसे बहरहाल कबूल नहीं थी। वो खुद भी एक जीदार आदमी लगता था। वो जान चुका था कि उसने राडा और नजाकत की जो हालत की है, इस नाकाबिले तलाफी जुर्म की सजा मौत की सूरत में बहरहाल उसे भुगतना तो ही पड़ेगी, मगर वो इस तरह तशद्दुद सहकर नहीं जीना चाहता था। ये अपनी जिंदगी से मायूसी की इंतहा सही, ताहम उसका ये फैसला गलत नहीं था। वादा करो। वादा रहा, लेकिन इसके इफा का इन्हिसार तुम्हारी बात की तस्दीक पर होगा। मैंने मोहतात लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। पहले जुगनू के बारे में बताओ। वो जिंदा है और काली हवेली में कैद है। काली हवेली का रास्ता? उसने सियालकोट के जनूबी मुजाफाती इलाके का नाम और उसकी सुराहत बयान कर डाली। मेरी दो साथी फौजिया और राहिला भी इनके कब्जे में थी। मुझे उनका भी फकत इसी हद तक इल्म है कि वो भी वहीं है। लेकिन शिकरा कुछ कहते कहते रुका तो मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या है? इन दोनों को बहुत जल्द किसी और मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया जाना था, इसलिए मैं इन दोनों लड़कियों के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि वो अब भी वहां होंगी या नहीं। इसलिए अगर वो वहां ना मिलें तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। इस मुर्दार की बात ने मुझे मजीद परेशान कुन तशवीश में मुब्तला कर दिया। ताहम ये क्या कम था कि हमें मैडम लच्छी और रांगा बाबा के असल ठिकाने का पता मालूम हो चुका था। मैं आगे मुस्तफसर हुआ। दरिया तवी के किनारे वो क्या मामलात थे जिसके लिए राजा तैमूर और तुम लोग वहां एक खुफिया मीटिंग पर पहुंचे थे? मेरे सवाल पर वो फिर हचर मचर के मूड में नजर आने लगा। ये भांपते हुए मैंने कहा, याद रखना शिकरा, मैं वहां का कोना कोना खंगाल कर रहूंगा, इसलिए झूठ मत बोलना। मेरी आसान मौत का क्या बंदोबस्त करोगे तुम लोग? उसकी सुई फिर वहीं घूम गई। जो तुम्हारा इंतखाब हो, जहरीला इंजेक्शन, इसका हसूल नामुमकिन हद तक मुश्किल है। मैंने रुखाई से जवाब दिया। ए शाबाशे, कनपट्टी पर गोली मारने के बारे में क्या ख्याल है? इस बार जोजी ने लुकमा दिया। ये कुछ बेहतर रहेगा, शिकरा बोला। चलो अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। वहां वो अपना जेर जमीन खुफिया ठिकाना कायम करना चाहते हैं। क्या इसी मकसद के लिए ये लोग पहले भांडियल साईं के इलाके में जमीन खरीदना चाहते थे? ये सवाल अचानक कुछ सोचकर जोजी ने किया था। हाँ, पर इससे बात नहीं बन सकी। भांडियल साईं अपने इलाके में इन्हें जमीन नहीं देना चाहता था। आदिल का कत्ल किस वजह से किया गया? जोजी ने अगला सवाल किया। आदिल इकबाल का आदमी था। इकबाल भांडियल साईं का पुराना और गहरा दोस्त था। इकबाल ही ने भांडियल साईं को मना किया था। इकबाल वहां कोई सॉल्वेंट प्लांट लगाना चाहता था, साथ ही जराइम पेशा अफराद के लिए एक बड़ा ठिकाना भी। मैडम लच्छी और रांगा बाबा को इसका पता चला कि असल वजह भांडियल साईं की इकबाल से दोस्ती है, तो उन्होंने इकबाल को राम करना चाहा, मगर वो भी नहीं माना। आदिल को इकबाल ने इनकी जासूसी पर लगाया कि आखिर पता चले ये लोग हैं कौन जो बज़ाहिर खुद को कारोबारी जाहिर कर रहे हैं। आदिल ने इनकी असलियत जान ली, मगर इन्हें मालूम हो गया और इन लोगों ने आदिल का कत्ल कर डाला। राजा तैमूर इनका अहम साथी बना हुआ है। ये क्या चक्कर है? इस बार मैंने पूछा। शिकरा बोला, राजा तैमूर उनका खास दस्तरास्त है। वो चूंकि सियालकोट की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, इसलिए मैडम वगैरह ने उसे साथ मिलाकर आड़ ढूंढनी चाहिए है। भांडियल साईं से भी उसकी कारोबारी हद तक शनासाई है। उसने भी एक दिन भांडियल को अपने ऑफिस बुलाकर मनाना चाहा था। भांडियल नहीं माना तो दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मुझे याद आया ये उसी बात का जिक्र कर रहा था जो हमें पहले कबीर बता चुका था। जब वो अपने रकीब वसीम का पीछा करते हुए उसके बाप राजा तैमूर की शाहपुरा वाली तैमूर इंडस्ट्रीज नामी एक बिल्डिंग के ऑफिस तक जा पहुंचा था, वहां उसने अपनी आंखों के सामने इनकी तल्ख कलामी का मंजर देखा था। ऐसा शंकर झूठ नहीं बोल रहा था। दरियाई तवी के किनारे अब यह जमीन इन्हें राजा तैमूर की वजह से मिल चुकी है।
वो किस मकसद के लिए ली गई है? अपना धंधा बढ़ाने और मजबूत करने के लिए। इनका धंधा क्या है? लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जादू टूने की जानिब माइल करना और सबको बम्बोरगा का पैरोकार बनाना है। मैं और जोजी दोनों ही इस इंकशाफ पर चौंके बिना नहीं रह सके। ऐ शाबाश, ये बम्बोरगा कौन है? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, बस जी मैडम और रांगा बाबा की जुबानी का तज़किरा सुना हुआ है मैंने। अब भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैंने तुम लोगों को बहुत कुछ बता दिया, अब तो वो लोग भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी तरह अज़ियतें दे देकर हलाक करेंगे। लेकिन तुम मुझसे वादा कर चुके हो कि मुझे आसान मौत। हम अपने वादे पर कायम हैं, लेकिन अभी तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने संजीदगी से कहा और फिर परवेज को हदायत की कि वो इसका ख्याल रखे और जब तक इसके बातों की मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो जाती इस पर मजीद कोई तशद्दुद ना करे। फिर हम कमरे में आ गए। मैडम लच्छी और रांगा बाबा के ठिकाने काली हवेली का इल्म होते ही मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा था। मैंने इसी वक्त वहां रवानगी का पुख्ता इरादा कर लिया, लेकिन इससे पहले मैं घर का एक चक्कर जरूर लगाने का इरादा रखता था। वहां सिदरा, रहीम बाबा और जन्नत बीबी थे। ये सब लोग यकीनन मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। फौजिया और राहिला के लिए भी वो फिक्रमंद हो सकते थे। निशगुफ्ता खातून और उसकी बेटी निघत से भी मुझे मिलना था। अगरचे यह भी जरूरी नहीं था, ताहम वहां जाने के बाद ही इन दोनों माँ बेटी से मिलने का सोचा जा सकता था। निघत से तो मेरा दिल खराब हो चुका था। अलबत्ता इसकी माँ शगुफ्ता खातून मेरे लिए बहुत मुखलिस औरत थी। वो मुझे बेटा कहती थी। इकबाल खत्म हो चुका था, मगर सज्जाद बेग की सूरत में इसकी घरावनी बाकियात मौजूद थी। देखना यह था कि अब इन माँ बेटी के क्या हालात थे और निघत को अकल आई थी या फिर उसका दिल भी मेरी तरह अपनी माँ से भी खराब हो चुका था। मेरे लिए ये तमाम मामलात सानवी थे। सबसे पहले मैं फौजिया, राहिला और जुगनू को काली लहर वालों के खतरनाक चुंगल से रिहाई दिलाना चाहता था। उस्ताद जोजी और मैंने वहीं बैठकर एक मंसूबा बना लिया। कबीर और जुबैर को हमारे साथ होना था। यह सब तय हो जाने के बाद जोजी ने आखिर में मुझे मशवरा देने के अंदाज में कहा, मेरा तो ख्याल था कि जुगनू के अगवा के बारे में इसके दोस्त दिलावर शाह को तुम्हें आगाह कर देना चाहिए था। मुमकिन है वो? अभी नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। यूं भी वो शहर से बाहर है। कबीर और जुबैर पूरी तैयारी कर चुके थे। जोजी ने इनका बगौर जायजा लिया। इन दोनों की पीठ पर एडवेंचर किट्स थी। इन दोनों की तैयारी का मतलब जोजी और मेरी तैयारी भी थी। हम इमारत से बाहर आ गए। दोपहर हो चली थी। हल्की ठंड से अंदाजा होता था कि आज रात सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली थी। हम सब चुस्त और गर्म लिबास में मलबूस थे। हम सब शेराड कार में सवार होकर रवाना हो गए। स्टीयरिंग जोजी ने संभाल रखा था। मैं इसके बराबर वाली सीट पर था, जबकि कबीर और जुबैर अकबी निशिस्त पर मौजूद थे। सबसे पहले मेरा इरादा घर जाने का था। वहां सिदरा वगैरह का हाल जानना अजहद जरूरी था। इसके बाद ही मैं एक तरफा ज़हन के साथ अगली मुहिम पर अपनी तवज्जो मरकूज रख सकता था, जिसमें काफी हद तक मुझे कामयाबी की राहत दिखाई देती थी। घर पहुंचा तो रहीम बाबा ही ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गए, बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इतने से अरसे में मेरा इनसे मोहब्बत और इनका मुझसे शफकत भरा ताल्लुक कायम हो चुका था। अगरचे असल वजह सिदरा ही थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं सिदरा के लिए क्या हैसियत रखता था। सोराब पुत्र, तू किधर चला गया था? शुक्र है मेरे रब्बा। इन्होंने बेइख्तियार दुआया अंदाज में अपने हाथ आसमान की जानिब उठा दिए। अंदर सब खैरियत है ना? सिदरा बीबी कैसी हैं और अंकल महमूद? मैंने कहा। आ जाओ, अंदर तो आओ। वो एकदम बोला। फिर कार में बैठे मेरे साथियों पर उसकी नजर पड़ी। पुत्र, ये तेरे यार बेली हैं तो इन्हें भी अंदर? नहीं, ये बाहर ही रुकेंगे, मैं जरा देर के लिए आया हूँ, कहते हुए मैं अंदर आ गया। अरे देखो सिदरा बीबी, जन्नत, कहाँ हो तुम लोग? देखो कौन आया है। रहीम बाबा मेरी आमद पर बहुत खुश थे। अंकल महमूद तो कहीं बाहर गए हुए थे। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, सिदरा अपनी वालदा और अंकल मुश्ताक की वफात के बाद अपना सारा कारोबार समेट कर सियालकोट आ चुकी थी। यहाँ अंकल महमूद ही इसके कारोबार को दोबारा जमाने के लिए सिदरा के साथ कोशा थे। सिदरा और जन्नत दौड़ती हुई मुझसे मिलने आ पहुंची। बेचारी जन्नत बीबी ने तो मेरी बलाएं लेना शुरू कर दी। सिदरा का चेहरा, जो किसी मसले हुए फूल की तरह कुमलाया हुआ लगता था, मुझे देखकर एकदम खिल उठा। सोहराब, तुम? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम ठीक हो ना? यूं अचानक कहाँ चले गए थे तुम? अंकल महमूद ने तो तुम्हारी अचानक गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। इस वक्त भी वो पुलिस हेडक्वार्टर गए हुए हैं। सिदरा एक ही सांस में कहती चली गई। लेकिन वो फौजिया और राहिला कहाँ हैं? फरते जज्बात तले उसकी आवाज ही नहीं, लहजा भी कपकपा रहा था। मैं बस तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था और अपना बताने, मैंने जल्दी से कहा। इस वक्त मैं इन्हीं की तलाश में जा रहा हूँ। इनका पता मालूम हो चुका है। क्या तुम दोबारा जा रहे हो? सिदरा का कोमल सा चेहरा दोबारा कमला गया। लेकिन बाकी तफसील जल्द आकर बताऊंगा। तुम लोग बस मेरी कामयाबी की दुआ करना। वक्त नहीं है मेरे पास, अभी सिर्फ अपनी खैरियत देने आया था। अब जरा ये बताओ, वो इन दोनों पड़ोसी माँ बेटी का क्या हाल है?
वो शगुफ्ता खातून तो कई बार तुम्हारा पूछने यहाँ आ चुकी हैं। सिदरा बोली। वो बेचारी भी तुम्हारी अचानक गुमशुदगी पर बहुत तशवीश ज़दा और फिक्रमंद थी, लेकिन क्या, जल्दी बताओ ना सिदरा। इस बेचारी को भी एक परेशानी लाहक हो गई है। कैसी परेशानी? उसे अपनी बेटी, क्या नाम था, हाँ निग्घत, उसी का जिक्र किया था एक दिन उसने। क्या जिक्र किया था? मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी रहीं। वो शायद अपनी माँ को छोड़कर कहीं चली गई है। क्या? मैं इस इंकिशाफ पर बुरी तरह चौंक पड़ा। अच्छा ठीक है, अंकल महमूद आए तो मेरी खैर खैरियत बता देना। मैं चलता हूँ और जरा शगुफ्ता खातून से भी मिल लेता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना सोहराब। सिदरा की सितारा सी आंखें भीगने लगी। मेरे इस तरह आने की उसे जिस कदर खुशी थी, वही दुख और तशवीश मेरे दोबारा लौट जाने का सुनकर उसे होने लगा था। मैं पलटने लगा तो रहीम बाबा ने मुझे पुकारा। पुत्र। मैं रुक गया, मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। वो किसी औरत का भी फोन आया था, राजनपुर से। कहते हुए उसने अपनी बीवी जन्नत बीबी की तरफ देखा। क्या नाम बताया था तूने उसका? वो जी नादो था नाम उसका। मैंने ही उसका फोन उठाया था। जन्नत ने मेरी तरफ देखकर बताया। मैं दादो के जिक्र पर चौंक सा गया। क्या कह रही थी वो? मैंने पूछा। आपका पूछ रही थी। मैंने उसे आपकी गुमशुदगी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। ये जरूर कहा कि आप बताए बगैर काफी रोज से कहीं बाहर गए हुए हैं। और कुछ कहा? मेरा मतलब है अपने बारे में कुछ बताया हो। किसी ख्याल के तहत मैंने जन्नत से पूछा। बातों और लहजे से कुछ परेशान और गमगीन तो लगी थी, पर कुछ ऐसा अपने बारे में उसने बताया तो नहीं। जन्नत ने जवाब में कहा, बख्तियार के घर पर फोन नहीं था, इसकी खाद वाली दुकान पर था। मुमकिन था कि नादो ने वहीं से या फिर किसी और जगह से फोन किया हो। खुदा जाने क्या बात हो सकती थी, लेकिन नादो मेरे लिए कभी अहम नहीं रही थी। आखिरी बार उसने फोन पर मुझे बताया था कि वो और बख्तियार शादी करने वाले थे। इस सबब मेरी उससे फोन पर ही कुछ तंजिया सी तल्ख कलामी हुई थी और मुझे अपनी और बख्तियार की शादी में शिरकत करने के लिए राजनपुर आने का कह रही थी, मगर मैंने मसरूफियात और हालात की मजबूरी बताकर इनकार कर दिया था। बहरकैफ अभी जी तो चाहा कि उसे फोन कर लूं, मगर फिर इरादा बदल दिया और बाहर आ गया। वहां से मैं साथियों के साथ शगुफ्ता खातून के घर के सामने रुका, जो पिछली जानिब ही था। जोजी वगैरह हनूज कार ही में सवार रहे। मैं धड़कते दिल से दरवाजे की जानिब बढ़ा और दस्तक दी। जरा देर बाद दरवाजा खुला और सामने शगुफ्ता खातून को देखा और देखता ही चला गया। वो अच्छी खासी सेहतमंद, जिंदा दिल और सब्र हौसले वाली औरत मुझे आज जैसे बरसों की बीमार नजर आने लगी। इस उम्र में भी उसकी रंगत खिलती हुई और हल्की गुलाबी रही थी। लिबास और रख रखाव का भी वो ख्याल रखती थी, मगर अब तो वो यूं दिखाई दे रही थी जैसे बिस्तरे अलालत से मुश्किल उठकर घिसटती हुई दरवाजा खोलने आई हो। इसके बाल उजड़े और बिखरे हुए थे, आंखें मुतवर्रम, लिबास भी ना जाने कब का पहना हुआ था। वकार और तंतने के साथ उसका खड़ा होना ना जाने अब कहाँ रुखसत हो गया था। अब तो यूं खड़ी थी जैसे अब गिरी के तब। सोहराब। मुझे देखते ही मुश्किल उसकी जुबान से निकला और फरते जज्बात तले नाताकती के बावजूद मेरी जानी बढ़ी थी कि गिरने लगी। मैं बढ़कर उसे थाम न लेता तो बाहर ही आ गिरती। मेरा इस खातून से कोई रिश्ता नहीं था, माँ सिवाय इंसानियत के वो मुझे बेटा कहती थी। संभलिए आप, या आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, अंदर चलें। मैंने उससे संभाला देते हुए कहा। बेटा सोहराब, तुम कहाँ चले गए थे? शुक्र है सलामत हो। इतना कहती हुई उसकी सांसें बुरी तरह फूल गईं और वो खांसने लगी।